everyone and welcome to my channel Pooja Learning Classes. How are you all? I hope you are all doing well. So today onwards I am going to start 9th standard both algebra and geometry, and my first video is 9th standard geometry, that is basic concepts in geometry. So before giving the introduction of basic concepts in geometry, first of all, what do you mean by geometry? Geometry is a branch of mathematics that deals with shapes, sizes, properties of figures and etc. But now in this chapter it will be mainly focusing on specially what is a line. I'll explain you about line segment, a point. First of all, it will be a point, line and line segment. So first of all, what is a point? What is a point? In this plane surface, for example, this is my plane surface. On this plane surface, if I am marking one dot, in mathematics, this dot is called as what? This dot is called as a point, and you can denote this point by any letters from A to Z. For example, I am denoting this point as point B. You can denote this point as point A also, point B also, point C also, whatever letters you like, you can name this point. So in mathematics, this dot is called as a point. So in geometry, the basic concepts, it starts from a point. So what is a point? A point, a plane surface in which if I mark a point on this plane surface, we can name this point as point P, point Q, point R, point S. And remember, always you have to name this point by using only capital letters. Okay, so this one is the point. This is about point. Now what is a line? I think all of you know, you have studied in the previous classes that what is a line. What is a line? A line is a simple, it is a straight line. Okay, and I am naming this straight line as straight line AB. This is a straight line AB. How will you name this? This is a straight line AB. In this line, there are infinite number of points on this line AB. The line AB contains infinite number of points, and a line has no end points. Why it has no end points? Because you can extend the line towards A also, as well as you can extend the line towards B also. And this A and B are not the end points of this line. This A and B is also a point which is on a line. So what is a line? A line means what? A line has no end points first of all, and a line contains infinitely many number of points. So this is about line. The next one is what is a line segment. Again, this also you have studied in the previous classes. What is a line segment? I think all of you know a line segment. This is a line segment. It has how many end points? It has two end points. For example, this is point A and this is point B. So what are these points A and B? These are the end points of A and B. And in between these end points, there are infinitely many number of points on this line segment AB. So what do you mean by line segment? A line segment means which has two end points. A line segment contains two end points, and here those two end points are A and B. End points means what? You cannot extend the line segment towards A and towards B. These are the end points. That means यहाँ पे line खत्म हो जाती है. Point A पे आके खत्म हो जाएगी line. Point B के आगे आप कोई भी line draw नहीं कर सकते. यानी इसका मतलब ये है कि इसके आगे आप कोई line draw नहीं कर सकते. And in between this two end points, there are infinitely many number of points on this line segment. So this is about a point, what is a line and a line segment. अभी इसके बाद है coordinates of points and distance. Coordinates of points and distance. अब इसका मतलब क्या है? What do you mean by coordinates of points and distance? For example, I am drawing one number line, straight line. This straight line is also called as a number line. ये एक number line है. मैंने क्या बोला? A line has no end points. You can extend the line in both the directions.
अब मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, अब इस स्ट्रेट लाइन पे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मार्क किए। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट है, अब मैं इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ एज O, दिस इज O। इसको नाम दे दिया एज B, इसे नाम दे दिया एज C, इसे नाम दे दिया एज D और इसे नाम दे दिया एज E। तो ये क्या है? These are the points. What are all these? These are the points on a straight line. अब मैं क्या कर रही हूँ, सपोज O का एक चीज याद रखिए, O का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 रहेगा। That means the coordinate of point O is 0. And I think all of you know that the numbers to the right hand side of 0 are all positive numbers and the numbers to the left hand side of 0 are negative numbers. Always remember 0 के right hand side में जब आप जाओगे सारे positive numbers रहेंगे और 0 के left hand side में जाओगे तो सारे negative numbers होंगे। Okay, understood? अब ये देखिए, ये जो पॉइंट O है इसका कोऑर्डिनेट है O, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है, आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर एनी पॉइंट, ये सिंपल एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है। अब ये जो पॉइंट A है इसका कोऑर्डिनेट है 2। ये सारे क्या है? 0 1 2, दीज आर ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पॉइंट्स, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट है 3। अब यहाँ पे 0 के राइट हैंड साइड में मैंने जितने भी नंबर्स लिए हैं दीज आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में मैं जाऊंगी, आई टेक द नेगेटिव नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज -1, -2 एंड हियर इट इज -3, ठीक है। अब ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स यानी यहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है और जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं दैट इज D, C, O, A, E, ये जो नंबर्स लिखे हैं दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, ऐसे भी आप एग्जाम में पूछ सकते हैं कि C का कोऑर्डिनेट क्या है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C? इट इज -2। What is the coordinate of point D? -3. For example, मैंने पूछा what is the coordinate of point E? Then what is the coordinate of point E? It is 3. So these are all called as the coordinates of points. अब भी find out क्या करना है आपको? Distance find out करना है। Next step क्या है? You have to find out the distance between any two points. The distance is denoted by D. ठीक है, द डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर D, स्मॉल लेटर D। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि D और C के बीच का डिस्टेंस क्या है, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो बिफोर फाइंडिंग द डिस्टेंस फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C एंड पॉइंट D। तो सबसे पहले आप ये लिखिए व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। What is the coordinate of point C? C का coordinate क्या है? -2। Next आपको find out करना है what is the coordinate of point D? What is the coordinate of point D? -3। अब मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। याद रखिए हमेशा डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव में रहेगा, द डिस्टेंस विल नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है यानी आपके दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जो आपने फाइंड आउट किए हो वो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि जब कभी भी आप दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। Okay, now coordinate of point C is -2, coordinates of point D is -3। अब मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जब मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगी डिस्टेंस ऑफ C, D, जो भी बड़ा नंबर होगा वो पहले लिखूंगे। व्हाट इज द बिगर नंबर? -2 और -3। नेगेटिव नंबर्स में जो छोटे नंबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं और जो बड़े नंबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी नेगेटिव नंबर्स में उल्टा जाता है। सो हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C विच इज -2 इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, तो जब कभी भी इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो आप हमेशा क्या करोगे? द फॉर्मूला इज कोऑर्डिनेट ऑफ
पॉइंट सी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। ठीक है, तो जब मैं -2 को -3 से माइनस करूंगी, -2 माइनस ऑफ -3, तो -2 माइनस इंटू माइनस। अब यहाँ पे देखिए -3 इज इनसाइड द ब्रैकेट, ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर विल बी इनसाइड द ब्रैकेट। अब मुझे इसका ब्रैकेट ओपन करना है। वेन एवर आई नीड टू ओपन द ब्रैकेट आई हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू साइंस। What are the signs here? Minus and minus. So minus into minus is what? Plus. -2 plus 3. अब यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। जब कभी भी एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर होता है तब हमेशा माइनस करते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेटर साइन। सो हियर व्हाट इज 3 minus 2? 3 minus 2 is 1. And what is the sign before 3? The sign before 3 is +1. So therefore the distance from point C to D is how much? It is +1. ये देखिए डिस्टेंस आ गया पॉजिटिव में। तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि वेन एवर यू आर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स द आंसर शुड ऑलवेज बी इन पॉजिटिव नंबर। ओके, सो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? जब कभी भी आप दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या करोगे? माइनस करना है। माइनस कैसे करोगे? द स्मॉलर नंबर फ्रॉम ग्रेटर नंबर। हाउ विल यू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर? और यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है मेरा? -2 है। सो अगर -2 -3 से बड़ा है, सो देयरफॉर -2 माइनस ऑफ -3। तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, -2 + 3 इज व्हाट? विच इज 1। सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। अब एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ। पानी टपक रहा है, पानी टपक रहा है। अभी नेक्स्ट है, आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स A, E। कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर d और ब्रैकेट के अंदर में A, E, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ AE। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AE? या तो आप ऐसे लिखो या तो आप ऐसे लिखो, बोथ आर सेम। ऑलवेज द डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो ब्रैकेट के अंदर में उन दो पॉइंट्स को लिखोगे विच इज सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है ए और ई के बीच का डिस्टेंस। सेम, पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए? विच इज 2। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई विच इज 3। ठीक है, अब इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 3 इज ग्रेटर देन 2। So what I said, how to find out the distance between the 2 points? You have to subtract the smaller number from the bigger number. So smaller number कौन सा है यहाँ पे? 2। तो स्मॉलर से यानी बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर को क्या करोगे? माइनस करोगे। सो हियर 3 माइनस ऑफ 2। 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज 3 माइनस 2? इट इज 1। अगेन द डिस्टेंस फ्रॉम A to E is what? The distance from A to E is 1. In this way you have to find out the coordinates of points and distance. अब नेक्स्ट जाते हैं बिटवीननेस पे। व्हाट डू यू मीन बाय बिटवीननेस? अगर सपोज इफ P, Q, R are 3 distinct collinear points, 3 distinct collinear points, then either P will be in between Q and R, Q will be in between P and R, or R will be in between P and Q. Collinear point. सबसे पहले before going to betweenness, first of all, what do you mean by collinear points? Collinear points किसे बोलते हैं? The points which lie on the same line. Suppose ये मैंने straight line draw किया है। अब मैंने यहाँ पे points मार्क किए हैं A, B और C.
इसका मतलब क्या है, ये जो तीनों पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स जो है एक ही लाइन में आ रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे लिया तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये जो 3 पॉइंट्स है, these 3 points are not lying on the same line, so these are called as what, non-collinear points. So there is a difference between a collinear points and non-collinear points. What do you mean by collinear points? The points which lie on the same line is called as collinear points, and non-collinear points यानी the points which lie on different parts यानी different line is called as a non-collinear points. अब यहाँ पे betweenness का concept क्या है? मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है ABC, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पॉइंट B है, पॉइंट B इज इन बिटवीन A एंड C, ये हो गया केस 1। केस 1 में क्या आएगा, या तो पॉइंट B A और C के बीच में रहेगा, सॉरी यहाँ पे लेते हैं एज पॉइंट P Q एंड R, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट Q है दैट इज इन बिटवीन P एंड R। बिटवीन यानी क्या, एग्जैक्ट बिटवीन में नहीं भी आया तो ये पॉइंट चलेगा। नेक्स्ट केस 2, केस 2 में क्या रहेगा, अगर सपोज मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे दिया पॉइंट R, यहाँ पे दिया पॉइंट P और यहाँ पे दिया पॉइंट Q, तो P जो है पॉइंट P इज इन बिटवीन R एंड Q, ये हो गया केस 2। केस 3 में क्या होगा, यहाँ पे केस 3 में यहाँ पे बीच में डाल दो R और इधर दे दो P और इधर दे दो Q। सो हियर इन केस 3 पॉइंट R इज इन बिटवीन P एंड Q। अब ये जो बिटवीननेस का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे पता चलेगा कि सो एंड सो पॉइंट इज इन बिटवीन। सपोज फॉर एग्जांपल केस 1 ले लिया, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉइंट P और R के बीच में है, या ये फाइंड आउट करना है कि Q कैसे P और R के बीच में है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल पॉइंट पी क्यू का डिस्टेंस है सपोज 2 यूनिट्स, और पॉइंट क्यू आर का डिस्टेंस है सपोज 3 यूनिट्स, और पॉइंट पी टू आर का डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। सो डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू कॉमा आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा आर। ये देखिए व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा क्यू, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है विच इज 2, प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू कॉमा आर, यहाँ पे मैंने लिखा है 3, विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा आर विच इज इक्वल्स टू 5। अगर मेरा LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट Q इज इन बिटवीन P एंड R। यहाँ पे ये देखिए डिस्टेंस ऑफ P कॉमा Q प्लस डिस्टेंस ऑफ Q कॉमा R इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ P कॉमा R। तो इन दोनों में देखिए आप ये देख सकते हैं कि पॉइंट Q इज कॉमन इन बोथ द साइड्स। In distance of P comma Q, point Q is there, and in distance of Q comma R also point Q is there. So Q is common in both the cases. So whichever point will be common, that point becomes the betweenness of the other 2 points. So this is called as the betweenness. अगर और LHS is equals to RHS, यानी distance of PQ है 2, distance of Q comma R है 3, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे और प्लस करने के बाद में अगर आपको सेम डिस्टेंस आ रहा है which is equals to 5, then we can say that point Q is in between P and R. So this is the concept of betweenness.